Hello everyone, this is AG Multi Solution and I am Shravan Nisad. As you seen in thumbnail, VSSC ISRO Electronics questions and solution with answers, memory based. So I am going to start that lecture. So first of all, I am going to tell the question. First question I remembered here. The logic gate which output is low only when its all inputs are high. So ये पूछ रहा है यह कौन सा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट केवल और केवल तभी हाई होगा, तभी लो होगा, जिसका आउटपुट केवल और कभी तभी लो होगा जब इसके सारे इनपुट हाई हो। दूसरा क्वेश्चन है, अभी साथ ही साथ इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने पर मैं इसका सलूशन और आंसर दोनों बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर टू द लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू द लोड। सिमिलर क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन था। तो यहाँ एक 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है और यह एक लोड है। इस लोड में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ टी का एफ ऑफ ओमेगा। इफ़ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ ओमेगा देन फाइंड एफ कैपिटल एफ ऑफ टी। इफ़ स्मॉल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा देन कैपिटल एफ ऑफ टी विल बी। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन में भी डिफर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा ए पावर एन का जब एन क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमाइज्ड फंक्शन ऑफ गिवन के मैप। एक के मैप दिया हुआ था इस तरह से और उसका मिनिमाइज फंक्शन फाइंड करना था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर 1012 बेस 3 1012 बेस 3 है, उसके बाद 112 बेस एक्स। तो इस नंबर सिस्टम में जो बेस एक्स है उसको फाइंड करना है, उसको कैलकुलेट करना है, क्या आएगा। सो वी हैव टू फाइंड एक्स वैल्यू इन दिस नंबर सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इफ इमीटर बाईपास कैपेसिटर इज रिमूव्ड देन इट्स गेन, आई डिड नॉट रिमेंबर it was current gain or voltage gain, but if it is current gain it is constant, means remains unchanged, and if it is voltage gain then it will become decrease. So next question is on the basic principle of op-amp with one ideal diode. So here this question was like that, we have to find out the function of output with respect to input. Okay, so I am going to explain, I am going to solve these 8 problems. After that, in second part I will solve the next upcoming next questions. So we can see here the solution of the first question. क्वेश्चन क्या था, एक लॉजिक गेट जब इसके सारे इनपुट हाई हो तभी इसका आउटपुट लो हो, ये कौन सा गेट होगा। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि जब दोनों हाई हो यानी कि दोनों 1 1 हो तब किस गेट में 0 आउटपुट आ रहा है। सिर्फ 1 और 1 कंडीशन में, इफ़ 0 1 या 1 0 और 0 0 कंडीशन में इफ़
it will become same, then that gate will not become that answer. Okay, so we are going to discuss. So here one NOR gate is there. So NOR gate equation is y1 equals to a plus b complement, a plus b whole complement. Okay, so a plus b complement here, and here I taken one XOR gate also. XOR gate Boolean expression is here, y2 equals to a bar b plus a b bar. Here NAND gate Boolean expression y3 equals to a bar b bar, not a bar b bar, a b का complete bar, you can say a bar plus b bar, you can say a bar plus b bar, here you can say a bar plus b bar also. Okay, so here one OR gate I taken. These three options in the exam they given, but this option I don't know it is given or not. So I tried one more example or also one more option. So here for OR gate function will become y4 equals to a, this is AND not OR, this is AND. So here function is equals to y equals to ab. Okay, so I taken one another gate, XNOR gate. XNOR gate output function equals to a bar b bar plus ab. So I am going to draw truth table for these gates, all these 5 gates. So for 0 0, if it is first gate y1, means if it is NOR gate, then this line will become output. So 0 0 1, 0 1 per 0, 1 0 per 0, 1 1 per 0, this is NOR gate output. Okay, so if 1 1 is input, all of this gate is 1 1, then output is 0, condition 1 satisfied. But it is it only one case? क्या एक ओनली केस है, एकमात्र केस है कि आर इनपुट हाई है तो 0 है आउटपुट? नहीं, हियर 1 0 पर भी ये आउटपुट 0 दे रहा है, 0 1 पर भी आउटपुट 0 दे रहा है. तो केवल एक केस में ये 0 नहीं दे रहा है, ये तीन केसों में 0 दे रहा है. इसलिए ये हमारा गेट आंसर में नहीं आएगा. इस गेट को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. ये हमारा गेट नहीं है. दूसरा गेट है XOR gate. So first of all we have to see 0 0, and 0 0 it will become 0, and 0 1 different input it will become 1, and 1 0 different inputs it will become 1. Okay, and for 1 1 it is 0. Here also it satisfied 1 1, here input 1 1. यहाँ input क्या है, दोनों हाई हैं, आउटपुट 0 है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. बट यहाँ पर ओनली केस अगर रहता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, एक दूसरा केस भी है, 0 0 पर भी ये 0 दे रहा है. जबकि क्वेश्चन में क्या था, ऐसा था कि केवल हाई है, दोनों इनपुट हाई होने पर ही यह 0 हो, आउटपुट 0 हो. तो ये कौन सा केस है, अब अगले केस में चेक करते हैं. ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ. अब हम चेक करते हैं नैंड गेट के लिए y3 इक्वल्स टू ए बी का कम्प्लीमेंट. ओके, ए बी टोटल कम्प्लीमेंट. अब चेक करिए यहाँ पर 0 0 पर क्या है, ए बी का कम्प्लीमेंट. मीन्स अगर ये 0 0 0 हो गया, मल्टीप्लाई होकर ए बी हो गया, ये ए बी है, ए बी 1 हो गया यहाँ. यानी कि इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 होना चाहिए. आप लोग चेक कर लीजिएगा, सुधार दीजिएगा. सो हियर 0 है तो इसका कम्प्लीमेंट 1, 0 है कम्प्लीमेंट 1, 0 है कम्प्लीमेंट 1, एंड 1 है कम्प्लीमेंट 0. यानी कि we can say here 1 1 input, both inputs are high, then output is 1. In all other case there is no possibility of 0 output. So this gate satisfy every condition of the question. So NAND gate will be the answer. So we have to tick that question, and NAND gate will be answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में ये क्या होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है ये टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो टोटल का सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा कैलकुलेट हमें करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव होगा तो कैसे होगा, देखिए रिमूव कर दिया हमने, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ से RTH कैलकुलेट करेंगे। RTH कैसे कैलकुलेट होगा, ये वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। जब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा तो ऐसे लग जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, ये हट गया, रिमूव हो गया, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पर 5 ओम था, RTH टोटल कितना आएगा 5 ओम, 5 ओम। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो एक कंडक्टर वायर है सिंपल सा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिंपल वायर है, तो ये कितना आ गया RTH 5 ओम। RTH 5 ओम आ गया तो यही RL के इक्वल होगा, RL इक्वल टू 5। तो हमें RL फाइंड हो गया, पता चल गया। जब RL पता चल गया तो हम वेरी इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हम करंट फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, पावर फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हमने 3 मेथड से सॉल्व किया इसको। पहला मेथड ये है कि हमने RL इक्वल टू RTH, RL कैलकुलेट कर लिया 5 ओम, ठीक है, RL इक्वल टू RTH 5 ओम हो गया। अब IL कैसे निकालेंगे, IL कैलकुलेट करने के लिए देखिए KVL लगा दीजिए यहाँ पर। तो कितना है 50 माइनस 5 I माइनस 5I बराबर 0 मीन्स इफ I करंट इज फ्लोइंग हियर, if I current is flowing here then applying KVL 50 minus 5I minus 5I equals to 0, then you will get this value। आप यह वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू डायरेक्टली बाय लुकिंग द सर्किट एंड डूइंग सेम। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट विल बी I equals to total voltage divided by total resistance। Directly you can say 5 ampere। So we got 5 ampere current in load, 5 ampere current in load। okay, so 5 ampere current यहाँ आ गया। if 5 ampere current is here, 5 ohm is resistance, then I square 25 into R 5 125 हो जाएगा। I square R से हम यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर लेंगे 125। this is the first method, this is first method। I am going to tell you the second method। second method is also very easy। we can calculate voltage। how you can calculate, if here 5 ohm and here also 5 ohm, two 5 ohm resistor are there, then voltage division rule we can apply directly here। so this voltage V output, or you can say VL equals to this resistance RL divided by RL plus RTH total 10 into VTH यानी कि सोर्स वोल्टेज 50। so we will get 5 ampere, not 5 ampere, 25 2.5, 1 second, 0 cancel out, 25 volt means if 50 volt is there then easily we can say also, बहुत आसानी से हम यह कर सकते हैं क्या, यहाँ पर 50 वोल्ट है और 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, ऐसे भी आप कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो 50 वोल्ट है तो 5 आधा इसमें बढ़ जाएगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा, 25 वोल्ट इधर आ जाएगा, 25 वोल्ट इधर आएगा। और आप वोल्टेज डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो लोड रेजिस्टेंस में आपका 25 वोल्ट आ गया, ये भी है, और आपका 5 ओम क्या है रेजिस्टेंस है। सो पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R, वी कैन कैलकुलेट पावर, मैक्सिमम पावर, दिस विल बी मैक्सिमम पावर, V स्क्वायर डिवाइड बाई 5 + 5 10, इतना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 250 नहीं, अभी ये तो नहीं हुआ, ठीक है, ये नीचे सोल्यूशन होगा फिर इसका, इधर यहाँ है, ठीक। VL लोड में 25 वोल्ट है और रेजिस्टेंस लोड का कितना है 5 ओम है, देन मैक्सिमम पावर क्या होगा V स्क्वायर बाई R, 25 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 मीन्स 625 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 125 वाट। एंड वन मोर मेथड इज देयर, वी कैन सॉल्व बाई
applying total voltage and total resistance, and after that we can calculate total power. And if we calculate total power, then total power will be divided in two equal resistance, then it will become half and half. So total resistance how many? 5 plus 5 10 ohm, total resistance 10 ohm, here 5 plus 5, and total voltage 50 volt. So V square divided by R, V square divided by R equals to total power. So V square divided by R is 250 watt. So total power is 250 watt. So 250 watt will be divided equally in these two resistance. So it will contain 150 watt, 125 watt, and here 125 watt. It will become 250 watt. यानी कि क्या कर सकते हैं, जब हमारा कंप्लीट पावर कैलकुलेट हो जाएगा तो हम पावर, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो आधा आधा हम बांट देंगे, आधा पावर एक रेजिस्टेंस को, आधा पावर दूसरे रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हमारा टोटल पावर मैक्सिमम पावर निकल जाएगा। और एक डाउट ज़रूर होगा आपके मन में, क्या कि ये टोटल पावर ऐसे कैसे निकाल रहे हैं आप, V स्क्वायर बाई 4R होता है, V स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL, V स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL इज द टोटल पावर। ओके, V स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL, ये फार्मूला आप सोच रहे होंगे इस फार्मूले से क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। जो V स्क्वायर है ये क्या है, सोर्स वोल्टेज का स्क्वायर है। ओके, सो P मैक्सिमम, P max इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL, दिस इज द फोर्थ मेथड। सो वी कैन से V इक्वल्स टू 50, हियर 50 दिया है यहाँ पर 50, RL क्या है 5 ओम। ओके, सो वी कैन अप्लाई हियर फॉर मैक्सिमम पावर। सो V स्क्वायर मीन्स 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू RL कितना है 5 ओम। सो 50 स्क्वायर 2500, and here 5 4 ja 20 and here now you will get 125 watt again. So you can apply any of the method, means आप कोई भी तरीका इस तरह से लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, यही मैक्सिमम पावर है। ये डायरेक्ट फार्मूले से है, ठीक है। और जो मैंने 3 मेथड्स और बताए हैं वो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है वो भी जान लीजिए, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। यहाँ मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। कंडीशन इज देयर इफ़ RL जो लोड रेजिस्टेंस है हमारा, इफ़ RL इज इक्वल्स टू RTH, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड RTH। इफ़ RL इज इक्वल्स टू RTH, if we will put, then power of RL will be maximum power of the load. In the formula, in this technique also, we can say these RTH will also take maximum power, means only 2 resistance will be there to take all the power equally, means यह रेजिस्टेंस क्या करेगा, यह रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द पावर, आधा पावर को ये कवर करेगा, आधा पावर को, हाफ पावर को ये कवर करेगा, ठीक है। दोनों आधे आधे पावर को कंज्यूम करेंगे, तभी जा कर के ये मैक्सिमम पावर लोड में आएगा। नहीं तो अगर रेजिस्टेंस डिफ़र करेगा तो मैक्सिमम पावर लोड में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी बस इसमें इतना ही, इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको नेटवर्क थ्योरी की क्लास लूँगा। अभी नेटवर्क थ्योरी में स्टार्ट करने वाला हूँ, नेटवर्क थ्योरी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास। सो आई विल कवर ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट वे, देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू। आई विल यूज एवरी शॉर्ट ट्रिक एंड एवरी बेसिक नॉलेज फॉर एवरी सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। Duality property of Fourier transform. It was given that if f of t, small f of t, Fourier transform इसका f of omega है, Fourier transform of small f of t is f of omega, then capital F of t Fourier transform क्या होगा, what will be the Fourier transform of capital F of t।
So this is a duality property, 2 pi f minus omega, 2 pi f minus omega. So it is the answer. Very basic question it was, only property used. So next question also is a formula or property of Z transform. So it was the question, Z transform of a to the power n where n is greater than or equal to 0. देन Z ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा इसका, a टू द पावर n का जब n ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो. सो इसका Z ट्रांसफॉर्म होगा Z डिवाइड बाई Z माइनस a वेयर मॉड ऑफ Z इज ग्रेटर देन क्या है a. ये ROC होता है हमारा, सर्कुलर होता है ROC Z ट्रांसफॉर्म में. सो दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 के मैप था, एक के मैप दिया हुआ था, उस पर के मैप पर था ये क्वेश्चन. तो के मैप में क्या है, इस तरह से के मैप दिया हुआ था. सो इस के मैप में यहाँ पर देखिए हम ग्रुपिंग करेंगे, इसका ग्रुपिंग हो गया और इसका ग्रुपिंग हो गया, और इधर से इसका ग्रुपिंग होगा, इसका ग्रुपिंग और इसका ग्रुपिंग. ठीक है. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ए, यहाँ पर बी और सी दिया हुआ था. सो वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं अभी आप देखिए, आपको इजी पड़ेगा थोड़ा सा. यहाँ पर बी बार सी बार, यहाँ बी सी बार 0 0 0 1 0 1 है ना, तो बी बार सी, यहाँ बी सी बार इस तरह से होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए बार होगा. ठीक है. इसको हम 0 0 बोल सकते हैं, 0 1 बोल सकते हैं, 1 1 बोल सकते हैं, 1 0 बोल सकते हैं, इधर 0 और 1 बोल सकते हैं. तो ये था बेसिक ऑफ के मैप. अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब सिंपल सा है. ये जो रेड वाला है इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ये 0 0 है, या ये कहें कि इधर ए बार है. सॉरी, एक और गलती हुआ है यहाँ, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा. यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट नहीं रहेगा. कम्प्लीमेंट तो 0 वाले पर होता है, जो कि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर ए बार रहेगा, तो यहाँ पर 0 है तो ए बार, यहाँ 1 है तो ए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अभी इसको सॉल्व करने के लिए. यहाँ देखिए कॉमन कुछ नहीं है, दोनों डिफर है. अब इसमें से यहाँ और यहाँ में देखिए क्या कॉमन है रेड वाले में. तो देखिए यहाँ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सी बार, यानी कि इस रेड वाले के लिए हमें मिल जाएगा सी बार. रेड वाले के लिए क्या मिलेगा, सी कॉम्प्लीमेंट. अब येलो वाले के लिए देखिए, इस येलो वाले के लिए क्या मिलेगा, इस येलो वाले के लिए देखिए, बताइए क्या होगा, क्या कॉमन है, ए बार तो कॉमन है, एक साइड में ए बार कॉमन है, ईयर यहाँ पर ए कॉमन है, ए बार. ठीक है, ए बार हो गया. एंड ए बार इज कॉमन इज फ्रॉम दिस साइड, ए बार इज कॉमन फ्रॉम दिस साइड. एंड हियर फॉर दीज टू व्हाट इज द कॉमन, बी बार. सो ए बार बी बार. एंड फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो ए बार बी बार हो गया, इसके लिए क्या हो गया, इधर ए कॉमन मिलेगा आपके लिए. हाँ, ए कॉमन मिल गया. ठीक है. और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, बी, यानी कि ए बी. तो क्या कुल टोटल हो गया, सी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी. ये आंसर आपका हो जाएगा. तो सी बार प्लस ए बार बी बार, ये हमारा के मैप का आंसर या सलूशन हो गया. और ये मेरा पार्ट 1 ख़त्म हो गया. पार्ट 2 ज़रूर आप देखिए इसी चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. और अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दें. और अगर सॉल्यूशन में कोई भी आपको गलती नज़र आए या कोई भी चीज़ आपको अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट में बता सकते हैं. और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में. ठीक है. थैंक यू फॉर वाचिंग.